maximum subarray sum. How many of you know about Cadence algorithm? Yes, ma'am. No, Didi. Okay, so this question is done by Cadence algorithm और Cadence algorithm जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही important algorithm, क्योंकि ये questions सीधा का सीधा ही पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, और this is considered as a medium level question. जबकि इसका कोड बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी दिस इज कंसिडर्ड एज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड काफी वेरिएशन तुमको मिल जाएंगे जहाँ पे हम इनडायरेक्टली कडेंस एल्गोरिथम ही यूज कर रहे होंगे, जहाँ पे भी इफ यू विल गेट अ सब एरे क्वेश्चन और इफ यू विल गेट अ क्वेश्चन दैट विल इंक्लूड दैट एट इस पॉइंट पे ईदर वी हैव टू चूज दिस और वी हैव टू चूज द प्रीवियस एलिमेंट्स आल्सो, सो दैट क्वेश्चन माइट be solved by the cadence algorithm. So we will solve this question in just give me a second, I'll just check the proper so हम एग्जाम्पल लेते हैं, वापस से बनाएंगे कह रहे, so हम एग्जाम्पल लेंगे -5 +1 -2 3 -1 2 और -2. सब लोग जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में मैक्सिमम सब एरे का सम क्या होगा? मैं भी देखती हूँ, मुझे भी नहीं पता ऐसा तो. हाँ, क्या होगा इस क्वेश्चन में मैक्सिमम सब एरे सम? सब एरे 6. हाउ इज इट 6? 0 1 2 3 4 5 6. It's 4. हाँ, अभी हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सब एरे मीन्स हम कॉन्टिग्युअस ही एक्सेस कर सकते हैं. हम ऐसे नहीं कि 5 ले लिया और 3 ले लिया, इस तरह नहीं कर सकते हैं. There's a difference between sub array and subsequence. तो इन subsequence we can pick element like from 5 और ये हम ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, बट सब array में हमको एक साथ contiguous लेना पड़ेगा. सब array नाम से पता चल रहा है, just like array we have to access contiguously only. So इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम होगा सब एरे सम वो होगा 4. 4 किस तरह होगा कि अगर हम इस वाले को देखें 3 -1 + 2 4. अभी कडेंस एल्गोरिथम क्या कहती है, अगर हमें मैक्सिमम सब एरे सम निकालना हो और हम अपने नाइव अप्रोच से जाएंगे. अच्छा, there are some people who don't understand Hindi. So if we are gonna solve this with the naive approach, so what we will do that we will run a for loop twice. For every element, for example at 5, we'll run a loop to check ki all those subarrays starting, we will check the sum of all those subarrays that are starting with -5. You're getting? First we will check -5 +1, then we'll check -5 +1 -2, -5 +1 -2 3. All this array we are gonna check, and this will take the complexity of O(n²), that is quadratic. We don't want that. We want to solve this question in O(n) complexity, that is linear. To achieve this linear complexity, at every point we will check all those subarrays from its left की मतलब 1 तो चलो शुरू में हो गया. At 3 we will check that all those subarray in the left that will end from 3. So when I am at 3 I'll check the sum of this or this. When I'm at 3, either I have to pick 3 only, or at we'll design an algorithm in such a way कि when we are at 3 we have the sum that इस वाली चीज में से हम मैक्सिमम क्या सब एरे निकाल सकते हैं जो कि -2 से एंडिंग हो रहा हो. तभी हम उसमें चेक करेंगे कि अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा सब एरे मैक्सिमम होगा, या फिर हम सिर्फ 3 लेंगे तो हमारा सब एरे मैक्सिमम होगा. तो उसको करने का क्या तरीका होता है,
when I am at 5, I have two options. Either I should take minus 5 or not. So we will take minus 5. We'll start with this only. When I am at 1, we know that all the subarray, like if there is a subarray ending with minus 1, its sum is minus 5, correct? So we will check that if we will add this subarray to this, like if I am gonna merge these arrays, so what will be the sum? This is minus ka 4. And if I am only having, like if my subarray will start from minus 1 only, like the subarray is this only, plus 1. Like at plus 1, we have two options, either to merge the previous subarray to plus 1 or to start a new subarray from plus 1 only, right? So यहाँ पे टू ऑप्शंस क्या होंगे हमारे पास, इधर -5 +1 एक सबैरे हो और या फिर एक +1 हो. हम इवेल्युएट करेंगे कि हम -5 +1 लेंगे या फिर +1 लेंगे. तो इन दोनों में से सम ज्यादा किसका है? +1 का. सो हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि हम इस +4 मतलब इन दोनों वैल्यूज में से अगर हम -4 लेंगे और हमें कॉन्टिजियस फैशन में ही आगे बढ़ना है, तो अगर हम इस माइनस की वैल्यू को लेके आगे चलेंगे, दैट विल गोना डिक्रीज आवर सम ओनली. वो कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा. जबकि अगर हम +1 लेंगे या फिर कोई 1 लेंगे या फिर -4 से कोई बड़ी वैल्यू लेंगे, इधर -3 कुछ भी होता, तो वो हमारे आगे के सम में कंट्रीब्यूट ही करता, ग्रेटर देन दी -4 वैल्यू, राइट? ये चीज समझ आ रही है? तो अभी हम सेम इसके लिए करते हैं कि अब जब हम -2 पर आएंगे तो वी ऑलरेडी हैव कि माइनस की +1 तक कौन सा सबैरे होगा जो मैक्सिमम वैल्यू रख सकता है. तो हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम यहाँ तक हम केवल +1 रख सकते हैं, जो कि 1 से ही एंडिंग सबैरे है. वहाँ का मैक्सिमम सम +1 ही हो सकता है. तो जब हम -2 के ऊपर आएंगे तब भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि प्रीवियस सबैरे जो भी आ रहा है +1 से एंडिंग, उसका सम ऐड करें या फिर -2 रखें. तो दो ऑप्शन है, या तो 1 और -2 या फिर -2. अब यहाँ पे हमारा क्या प्रॉफिटेबल वैल्यू है? मैम इसमें हमने फिर -5 को पूरा ही एक्सक्लूड कर दिया. हाँ, हमने -5 को पूरा ही एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि हमें पता है कि अगर हम -5 लेंगे तो वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ही करेगा. मतलब दैट इज नॉट गोना बी आवर प्रॉफिटेबल थिंग. सो यहाँ पर हम इसमें एरे का साइज डिक्रीज हो रहा है. नहीं, वी हैव टू फाइंड अ मतलब सबैरे. जैसा यस सबैरे इज कि इस एरे का कोई भी छोटा सा पार्ट. तो हम वो छोटा सा पार्ट निकालने का ट्राई करें. अभी हम आगे जैसे मूव करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. जैसे इस वाले में बताओ, अगर हम 2 पर हैं तो हमें क्या फायदे, मतलब क्या रहेगा कि हम -1 मतलब +1 इंक्लूड करें या फिर -2 भी रखें? +1 इंक्लूड करेंगे तो हमारा एक का सम -1 होगा और एक का -2 होगा. सो क्या प्रॉफिट है, मतलब क्या फायदे में रहेंगे अगर हम -1 लेंगे तो, राइट? क्योंकि Yes, ma'am. -2. सो अब जब हम यहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर वी नो कि ऑल की oh sorry, so when we are at 2, we already know that all the subarray ending with 1 is like the maximum value of all the subarray ending with 1 is +1 and I have two options here, either to include this +1 or to discard this previous subarray. So I'll include this +1 because that way it will become -1. When I am at 3, I know that the sum of maximum subarray ending with -2 is -1, this subarray, right? अब suppose we have added -5 also. So in that case, this sum would be equal to -6, right? And that is not that is not the maximum sum. So at 3, we already know what is the sum of our maximum subarray ending with -2. It is -1. So at 3 also I have two options, either -1 or 3 or either 3. What will we choose? Of course 3. So we will choose 3 here, right? So from 2 and 3 we are choosing 3. So when we will reach -1, we have two options, either to choose 3 -1 or to choose -1.
We will choose 3 minus 1, right? We will include this 3 because 3 is increasing our sum. So we will here also we will achieve 2. When we are gonna reaching here, we know that what is the maximum sub of subarray ending with -1. It is 2. We already know that. We will see that if we can add this sum to our current element, it is 4, or we can independently start our subarray from this position. So we will add because this is increasing our subarray sum. And when we will reach -2, we know what is the maximum sum of subarray ending with +2. It is 4, right? So 4 minus 2 is equals to 2, and -2 is equals to -2. So what is, like, we will not include this, like we will go from this only. So meanwhile, while we are doing all this thing now, we are also keep track that what is the maximum value, what is the maximum sum we got. So the maximum sum we got is here 4, right? So the algorithm moves something like this. So for I is equals to 0 to n, from I is equals to 0 to n, what we will do is, हमारे पास एक सम वेरिएबल होगा जिसमें कि हम इनिशियली क्या स्टोर करेंगे, ARRI. This sum is the maximum sum we can have, or we will start from this point and no, it is just hard. यहाँ the function start हो रहा है. So we will start from int I is equals to int n, or this is the current, and we have a current sum also that will, from this we will know that what is the current sum value. So at particular point we will check कि जो हमारा इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या तो हम प्रीवियस वाले सम को ऐड करें या फिर हम नहीं करें, मतलब द मैक्सिमम सम वी गॉट. सो जो करंट सम हम ले सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ करंट सम प्लस दिस एलिमेंट जिस पर हम अभी हैं, या फिर only this element, and then we will sum is equals to maximum of current or sum. So what this step is doing, no? So it will start from -5, and when it will check like start from +1, assume that we are starting from +1, so we already have -5 in our current sum. So at +1 we are checking that what is more profitable, either to take +1 as an alone, or to add the previous sum into our +1, and then we are updating our current is basically the maximum value like sub array value जो कि लास्ट वाले एलिमेंट पे एंड हो रही थी. That means कि maximum sub array value we have achieved until -5. Similarly, when I was at -2, this current is the maximum sub of sub array ending with +1. You are getting? Excuse me, ma'am. So, ma'am, in the question, can it ask the maximum sub array value till a particular element? Yeah, the interviewer might ask this question as well. Interviewer can say that what is the maximum subarray value I can get until -1 only. So you know where to stop your cadence algorithm, right? So this might look little tricky in the start, but it is like very easy. You have to just got this concept in your mind that at every point we have to check that whether we can add a previous baggage or not. If we can add our previous baggage and it is increasing our current profit, current sum, then we will add, otherwise we'll discard the whole previous thing and we'll start fresh from this point. And by starting fresh from this point, what it means that the subarray will start at this element and end at this element only. And then we will try to add this element into our next element.
Like for the next element, this is the previous thing we can get. Is like, are you getting this? If any of you have any doubts, you can let me know. So, Ma'am, what if they ask maximum subsequence? subsequence is a whole different question. That is like you have to go for deep. You have to go into DP for that. In the array problem, like subarray is relatively easier than finding a subsequence. So subsequence is like you take particular elements randomly, like so that you get the maximum value. So there is a different modification to this question also. In that question, what we are trying to achieve is we have to find the circular subarray sum. So what is it means by a circular subarray sum, like maximum circular subarray sum? It means that we can, like if I can get a profit by adding this element and adding this element, this is the -5, so I like don't take it literally. So I can also move in a circular fashion to check that either if my previous element, or like you can connect these basically, and you can check that either I can add the previous, like this first few elements and last few elements to get the perfect sum, to get the maximum subarray sum. So this question can also be solved by Cadence algorithm by a little trick. नॉर्मल सर्कुलर सबैरे सम निकाल कर चेक करेंगे कि अगर हमारा जो नॉर्मल सर्कुलर सबैरे सम है वो नेगेटिव ही आ रहा है, दैट मीन्स कि वही हो सकता है मैक्सिमम, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता. बट अगर वो पॉजिटिव आ रहा है देन वी हैव टू चेक कि मतलब we have to check that if there is a circular subarray sum that is greater than what we are getting in the normal cadence algorithm. So for that to check, to avoid the complexity, instead of finding the maximum subarray sum, we're gonna find the minimum subarray sum in an inverted array. That means in this question, if I am gonna invert this, I am gonna do this -3 + 1 -2 and 2, and in this if I can find the minimum subarray sum, so the maximum sum, like the maximum circular sum I can achieve is the total sum minus this minimum sum. Are you getting it? Basically this what is like, if we can go for circular, I will check the example of this question first. So the example of this question is the normaler sum is what we can achieve is either 8, either though we will go for 4, either maximum we will go for 7 minus 5 2 minus 4 6. So the maximum sum we can achieve is 8 only. Then we will gonna invert this array into -8, 4, -3, 5 and -4. Now we will achieve the minimum circular subarray sum. So minimum in this, like as this is already inverted, if I am gonna apply the cadence algorithm here to find the maximum, that is actually the minimum in our original array. Like 5, like if अगर मैं सब पूरे array को invert करके उसके अंदर maximum subarray sum निकालूंगी, that means it is actually the minimum sum in our original array. We can do this by an example also. No, I didn't get the last point. The minimum and maximum thing? Yes. We will do that by an example of it. So suppose I am trying to design an example for this. In this question,
In this question, the answer we need is 4, right? Because the maximum sum we can achieve is 1 plus 3, 4. This is a subarray. The answer we need is 4. And by using a normal cadence algorithm, when we are not actually considering the circular question, what is the answer? What is the maximum sum of subarray sum in this question? 3. 3. Right? You can also check with me कि अगर कुछ हो ना. -1 and -1. Yeah, 3. So 3 is the normal cadence algorithm sum. So 3 is not negative. So we know that like there can be a chance that the circular subarray sum is greater. So what we are gonna do is we will invert this array -1, 2, and -3, and then we are gonna find the maximum circular subarray sum in this. So the maximum circular, like the maximum normal cadence algorithm. So that would be 2, right? And this maximum here in the inverted array, the maximum subarray the maximum sum of subarray is actually the minimum in a normal array. You can check also. This 2 is the maximum, but if you will invert this is -2, right? अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो this -2 is the minimum sum, subarray sum we can get from this. वैसे मतलब थोड़ा लॉजिकली सोचो कि अगर हम एरे को ही नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहे हैं और उसमें हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, दैट इज द मिनिमम इन आवर पॉजिटिव एरे. क्योंकि बेसिकली हम वो सारे एलिमेंट्स जो कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब हमारे इन्वर्टेड एरे में वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उनका सम निकाल कर ला रहे हैं. तो अगर हमारे पास उनका सम होगा तो जो हमारा पुराना वाला एलिमेंट है उसमें तो वो सारे एलिमेंट नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना, तो उसमें तो वो मिनिमम सम हुआ. समझ रहे हो? ये चीज समझ आई है? फिर मैं और एक एग्जांपल से और ट्राई करें इसको. एक बार और समझा दीजिए. So 4 -5 and 6. नहीं, -5 की जगह इधर -5 ही ले लेते हैं. चलो. सो इस वाले क्वेश्चन में वैसे आंसर हमारा 10 आना चाहिए, पर जो नॉर्मल सम है वो हमारा 6 आएगा. तो हम ट्राई करेंगे कि इसको इन्वर्ट करें, -4 करें, 5 करें और फिर -6 करें, राइट? और फिर इसके अंदर हम अपना कडेंस एल्गोरिदम का मैक्सिमम निकाल कर देंगे. तो कडेंस एल्गोरिदम से मैक्सिमम सबारे सम आएगा 5. सो बेसिकली एल्गोरिदम क्या कर रहा है, वो एलिमेंट्स पिक कर रहा है जो कि हमारे सम में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबको सम को बढ़ा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि इस वाले में सारे के सारे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने वाले एलिमेंट्स हैं जो हमने इन्वर्टेड एरे से निकाला है सम. पर अगर हम इसको वापस से अपनी क्वेश्चन में जाकर देखें तो ये तो -5 था ना. इसका मतलब है कि हमने जो सम निकाला है अगर हम उसको इन्वर्ट कर दें, मतलब उस सम को ही उल्टा कर दें, दैट मीन्स कि वो सारे के सारे नेगेटिवली कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स का सम है. मतलब इस वाले क्वेश्चन में मिनिमम सबारे सम है. अगर हम 4 का एग्जांपल लेना, -5, -2 और यहाँ पर 6. Ma'am, can we do it without inverting? Without inverting, तो I guess we have to go for the for loop only again. I don't think there is a linear solution for that. If there is, we can check. Ma'am, can you explain the circular one again? Like, I didn't understand. Like the problem only? No, like the approach. The approach is I am explaining only. The approach is that first we will find like there are certain steps here. So first we will find the normal cadence sum, right? Then we will check that if cadence sum is greater than 0 or not. If the cadence sum is less than 0, we know that this is the maximum we can achieve. Like the circular sum इससे बड़ा आ ही नहीं सकता है, ये सबसे मैक्सिमम है जो हम ले सकते हैं. पर अगर if it is less than 0, पर अगर if this circular sum is greater than 0 actually,
then we have to check that is there any possibility that we will go for the circular loop and then we can find the maximum sum. So for that we will use a trick that we will invert our original array and then we will find the maximum sum there. So that way we can find the minimum sub array sum in our original array. लाइक खुद सोचो, अगर हम एरे को इन्वर्ट करके उसके अंदर मैक्सिमम निकाल रहे हैं, इट मींस जो ओरिजिनल था वो तो उसके अंदर मिनिमम हुआ ना. तो इफ वी गेट द मिनिमम सब एरे देयर सम, लाइक अगर कोई एरे है उसके अंदर हमें मिनिमम सब एरे सम मिल गया, इसका मतलब मैक्सिमम क्या होगा, जो यहाँ और यहाँ का सम होगा दैट इज द सर्कुलर. फिर हम इन दोनों में चेक कर लेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है. ये मिनिमम सब एरे सम वाला थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, पर मतलब ये लॉजिकली है कि अगर हम किसी चीज, अगर हम मतलब एरे को ही इन्वर्ट करके उसके अंदर मैक्सिमम निकालेंगे, दैट मीन्स दैट वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द मिनिमम इन आवर ओरिजिनल सब एरे, ओरिजिनल एरे एज अ होल. और इफ वंस वी फाइंड द मिनिमम वी कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम आवर ओरिजिनल सम to get the circular, like to get the sum of this all these circular elements. तुम्हारे फेसेस से तो लग रहा है तुम्हें अभी भी समझ नहीं. एक और एग्जांपल से ट्राई करते हैं. मैम कैन यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम once again? तो प्रॉब्लम ये था कि नॉर्मल कैडेंस में हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमें मैक्सिमम सब एरे निकालना है, राइट. अब हमें अगर लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हें मैक्सिमम सब एरे निकालना है, बट यू कैन ईदर गो फॉर सर्कुलर फैशन एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो तुम घूम कर यहाँ पर आके भी इस वाले एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हो. सो फॉर दिस प्रॉब्लम तो अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि बार बार चेक करें. तो हम अप्रोच क्या ले रहे हैं कि अगर हम इस वाले पूरे एरे में मिनिमम निकाल दें, अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि इस पूरे एरे में मिनिमम सब एरे सम क्या है, तो उसको हम अपने एक्चुअली टोटल सम में से माइनस करके हम पता लगा सकते हैं कि ये वाला सम क्या होगा, है ना. अगर सपोज दिस इज द मिनिमम, तो अगर हमें ये पता चल गया तो हम टोटल में से तो माइनस कर ही सकते हैं इसको टू नो कि इस वाले का क्या सम होगा. और उस मिनिमम को निकालने के लिए हम एक इन्वर्टेड एरे पे अपनी कटिंग्स एल्गोरिथम निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टेड का मैक्सिमम इस ओरिजिनल का मिनिमम. अभी थोड़ा क्लियर हुआ है? यस मैम. तो इसका कोड तो हम मैम वो लॉजिक बस एक समझ में नहीं आया. हमने जब मिनिमम निकाला and we had the maximum which we found out using Cadence theorem. उसके बाद हमने क्या करा, इन्वर्ट करा, उसमें से हमारा जो भी मैक्सिमम था वो हमारा मिनिमम हो गया बेसिकली नॉर्मल उसमें. देन उसके बाद हमने क्या करा, उसको हमने फिर डिफरेंस निकाला दोनों का. नहीं, बेसिकली हमारे पास टोटल सम है ना. टोटल सम ओरिजिनली पहले से कंप्यूट कर रखा है और हमें पता है कि हमारे पास मिनिमम एरे का सम क्या होगा. मिनिमम सब एरे का सम तो हमने निकाल लिया है. अब हम इसमें से एक सर्कुलर सम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम सर्कुलर सम क्या होगा, कि सम में से मिनिमम नॉर्मल सब एरे हम अगर माइनस कर दें तो हम मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे का सम पता चल जाएगा. देन वी कैन एक्चुअली कंपेयर कि ये वाला सर्कुलर सम ग्रेटर आ रहा है या फिर कटिंग्स वाला ग्रेटर आ रहा है, और उन दोनों में सम. क्योंकि कभी हो सकता है कि हमसे सर्कुलर पूछा जाए और हमारा नॉर्मल वाला फैशन वाला ही मैक्सिमम आ रहा है. सर्कुलर इज बेसिकली तो है प्रॉब्लम कि तुम सर्कुलर भी चेक कर सकते हो. ऑलराइट. ओके, सो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी करेंगे हम अभी. ये वाले क्वेश्चन तुम सब नोट डाउन कर लो और इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो अपने एडिटर पर. सबसे पहले कैडेंस एल्गोरिथम का एक फंक्शन बनाना, और पहले तो उसमें नॉर्मली एरे पास करना, दूसरी बार में उसमें एक इन्वर्टेड एरे पास करना, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको सम में से माइनस करना. बेसिकली जो इन्वर्टेड एरे से वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी नेगेटिव आएगी, तो तुम्हें एक्चुअली माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब तुम उसको पेन एंड पेपर पर सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मतलब वो, जैसे कि अगर हमें 4 - 5 और 6 था ना, तो यहाँ से हमारी वैल्यू -5 आ रही है
और हमारा ओरिजिनल एरे नहीं, इसको इन्वर्ट किया तो हमारा बना -4, 5 और -6। यहाँ से हमारे मैक्सिमम सब एरे की वैल्यू +5 आ रही है और हमारा टोटल सम क्या है इस सब एरे का 5 है ना। तो बेसिकली इसमें हमको ये वैल्यू जो है ये इन्वर्टेड की है, तो इसको हमें पहले एक माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि एक इन्वर्टेड सब एरे का सम है। तो अगर हमें मिनिमम मतलब अगर हमें इसके लिए देखना है तो हमें इसमें एक माइनस लगाना ही पड़ेगा, राइट, है ना। और फिर अगर हमें सम में से माइनस और ये वाली वैल्यू डालेंगे -5 तो हमें मिल जाएगा 10, जो कि एक्चुअली ये चीज थी, समझ रहे हो। तो फिर वो ये वाली चीज इम्प्लीमेंट करके देखना एक बार अपने एडिटर पर। ग्रेडियंट से हमारा वो 6 आ जाता है अगर हम नॉर्मली तो पहले वाला 6 आएगा और ये 10 आएगा, तो हम एक्चुअली कंपेयर करके देखेंगे कि 10 इज ग्रेटर देन 6। सो इसके बाद एक क्वेश्चन है, जो मुझसे गूगल में के इंटरव्यूज में एरे क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली मुझे वो कराना था, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें डीपी की प्रॉब्लम भी लग रही है। तो जब हम डीपी सॉल्व करेंगे तब हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझसे 4 में से एक इंटरव्यू 5 बेसिकली टोटल इंटरव्यूज हुए थे, उसमें से एक में पूछा गया था एरे का क्वेश्चन। तो एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको याद रखनी है पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे कि वी हैव टू कवर ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इंटरनली गूगल में क्या होता है, किसी भी कैंडिडेट के लिए जब भी इंटरव्यू प्रोसेस डिजाइन होता है तो ऑलरेडी हम मतलब पहला वंस द फर्स्ट इंटरव्यू इज ओवर उसके डेटाबेस में हम ऐड कर देते हैं कि ये वाले डेटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो बहुत रेयर होता है कि तुमसे एक डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अगले इंटरव्यू में पूछा जाए, और क्योंकि उनके 4-5 राउंड्स होते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर ले। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स को हल्के में लेना। ऊपर से ऐसा भी नहीं है, जैसे कुछ कंपनीज जो होती है वो STL अलाउ नहीं करती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तुम STL आराम से यूज कर सकते हो। जितने मैंने इंटरव्यूज दिए उसमें किसी में भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे STL अलाउड नहीं है। सो वो वाला क्वेश्चन, हाँ मानी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा है अरेज का पूछा है वो अगला राउंड पे नहीं पूछेगा, वही है हाँ ना? क्वेश्चन, या अगर if in the first round the question on arrays is asked, so the probability is very less that in the second round also an array question will be asked. It will be either from trees, DP, like it can be asked from DP. DP can like DP on arrays. It can be asked something like this, but pure array question it won't be asked. They won't ask. The problem will be focused on DP like mostly, and trees, like the first question they asked me on the first interview was on trees also, and in the last interview it was also on trees, but the concept was like very different. So we can say that what they are going to judge is on the topic instead of the data structures. So like जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं कि जैसे ट्रीज में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ट्रैवल, 3 तरह के ट्रैवल्स होते हैं, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इस तरह के। तो उसी तरह का एक और ट्रैवर्सल होता है जिसका मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उसका नाम मॉरिस ऑर्डर ट्रैवर्सल कुछ होता है। तो एक उस पर पूछा गया था क्वेश्चन। तो बेसिकली दैट क्वेश्चन वाज नॉट ऑन ट्रीज, दैट वाज ऑन द टॉपिक ऑफ मॉरिस ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो ऐसा हो सकता है कि वो डेटा स्ट्रक्चर दोबारा आए, पर बेसिकली वो एक टॉपिक को जज कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हम ट्राई करेंगे अभी, वो भी ट्रिक बेस्ड ही है। उसमें हमको एक एरे दिया होगा, दैट इज गोना बी अ बाइनरी एरे, और उस बाइनरी एरे में जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 0 0 1, दिस काइंड ऑफ एरे वी आर गिवन, और द क्वेश्चन है कि we have to make minimum number of flips, like either we can flip all ones to zeros or we can flip all zeros to ones to make this array similar, like either it is a array full of ones, either it is an array full of zeros. Okay, तो इस क्वेश्चन में
या सिमिलरली अगर हम कोई और एग्जांपल भी लें 0 1 0 1 0 0 1 1, इसमें भी so what is the minimum number of flips in this array that we can either achieve an array full of ones or you can either achieve an array full of zeros? मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे एरे के अंदर उतने तो क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल we can't flip this 1 1 and 1, we won't flip this one because like why would we need to flip this one? अगर हम सब कुछ ही फ्लिप कर देंगे तो एरे बन जाएगा 0 0 1 1 0. That is not even required. We either want to make this array 1 1 1 1 1 or we want to make this array 0 0 0 0 0. Or the point is कि if the array is contiguous, no, so we can flip it as in a one flip. Like we can flip the whole 0 in one flip and we can flip this one in one flip and this one in one flip. Like we can flip this contiguous same subarray in a single flip. So if I want to make this array a whole one, I need a one flip because I can flip all the zeros once. But if I want to make this array something like this, I have to use two flips, one for this subarray and one for this subarray. Similarly, in this question also, I can make either of like pura 0 or either ones. So for full like whole 0 array, हमको एक फ्लिप यहाँ, अगर 0 के लिए ट्राई कर रहे हैं हम, तो हमें एक फ्लिप यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, और क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस है तो एक यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे 3 फ्लिप्स लग रहे हैं हमको. और बिकॉज इट इज अ 0, सो हमको इन द 0 ऑल्सो वी विल टेक वन फ्लिप यहाँ पे, एक फ्लिप यहाँ पे और एक फ्लिप यहाँ पे 3, यहाँ पे बराबर लग रहा है. सो कोई पैटर्न नजर आ रहा है तुमको कि कितने फ्लिप्स लगेंगे ही लगेंगे या फिर कितने फ्लिप्स लग सकते हैं? मतलब बेसिकली ये तो है ना कि या तो हम पूरे एरे को जीरोस में कन्वर्ट कर रहे होंगे या हम पूरे एरेज को वंस में कन्वर्ट कर रहे होंगे. एक और एग्जांपल देती हूँ, उसमें फिर तुम लोग बताना कि क्या आंसर आएगा. So the example is 1 0 0 0 1 0. अरे रुको, 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1. So इसमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स क्या लग सकते हैं? 2 कैसे लग रहे हैं? 3 4 zeros Man, and 2 4 1. ये इसमें हमें ये पता चल रहा है कि या तो हम इन तीनों जीरोस को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 में और इन दोनों जीरोस को Yes, कन्वर्ट ma'am. कर सकते हैं 1 में, या फिर हम अलग अलग इनको कर सकते हैं 1 1 1 1 1 1. राइट. सो बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि अगर हम सबसे पहले हम इंडिविजुअली देखें कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 1 वाले ग्रुप्स कितने हैं? 3. एंड नंबर ऑफ 0 ग्रुप कितने हैं? 2. एंड we can convert a whole group at once. So if we are going to convert this whole group at once, like इन दोनों में से हम कौन से वाला चूज करेंगे? बिकॉज नंबर ऑफ फ्लिप्स नीडेड टू कन्वर्ट दिस whole group is like to convert all these ones is 3 and number of flips needed to convert all those 0 is 2, right? क्या ऐसा कोई केस हो सकता है कि जो नंबर ऑफ वंस वाले ग्रुप हो और नंबर ऑफ वंस वाले ग्रुप हो और नंबर ऑफ जीरोस वाले ग्रुप हो, उनके बीच का डिफरेंस 1 से ज्यादा हो? ऐसा पॉसिबल? कोई भी एरे बनाकर देखो अपने सिस्टम पर और अपनी पेन पर कि जो नंबर ऑफ वंस वाले ग्रुप और जीरोस वाले ग्रुप में डिफरेंस जो है वो 2 से या 1 से ज्यादा हो. No, ma'am. Either it will be 1 or 0. Yeah. करेक्ट. सो इस क्वेश्चन में हम बेसिक अप्रोच क्या लगा रहे होते हैं कि देखो कि हमें जो है, एक सेकंड में एक और एग्जांपल देने का ट्राई करती हूँ.
इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम इसको अगर हम जैसे ये वाला एग्जाम्पल था और जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस क्या था? इसमें 1 2 3 ग्रुप्स थे और 1 2 3 ग्रुप्स थे, करेक्ट। सो इसमें तीन थे दोनों के, और इसमें एक 3 था और एक 2 था। तो इसमें हमने कौन सा चूज किया? जो कि कम था, राइट। सो अगर कोई हमारा ग्रुप 1 से स्टार्ट होके 1 पर ही एंड हो रहा है, कि अगर हमारा 1 का ग्रुप स्टार्ट हुआ है और 1 का ही एंड हो रहा है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वंस वाला ग्रुप ऑब्वियसली ग्रेटर है नंबर ऑफ जीरोस वाले ग्रुप से, करेक्ट। अगर हमारा कोई ग्रुप 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पर एंड हो रहा है, तो इट मीन्स दैट दोनों के ग्रुप्स जो है वो बराबर है, क्योंकि 1 का खत्म हुआ होगा फिर 0 का आया होगा, 1 का खत्म हुआ होगा फिर 0 का आया होगा। अगर 0 का लास्ट में आया और 1 से स्टार्ट हुआ है तो 0 के भी 2 और 1 के भी 2। तो हम इस केस में कोई से भी ग्रुप को फ्लिप कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे दोनों ग्रुप्स का मतलब जीरोस और वंस के नंबर ऑफ ग्रुप्स बराबर हैं, तो हम या तो सारे जीरोस को फ्लिप कर दें या फिर सारे वंस को फ्लिप कर दें, एक ही बात होगी। पर अगर हमारा डिफरेंस 1 है, फिर डिफर करता है, तो हम इनर वाले ग्रुप को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 पे ही एंड हो रहा है, दैट मीन्स वंस के ग्रुप ज्यादा है, तो हम सारे जीरोस को चेंज करेंगे, दैट मीन्स इनर वाले ग्रुप को चेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में को बेसिकली हम एक हार्ड रूल बना लेते हैं कि हम जो है इनर वाला ग्रुप, यानी पहले वाला जो भी होगा एलिमेंट, उसको चेंज करेंगे ही नहीं। जैसे हमको कोई अंदर वाला ग्रुप दिखेगा, उसको हम पुराने वाले से चेंज कर देंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो जीरोस है कि वंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनर वाले को ही चेंज करेंगे, क्योंकि इनर वाले ग्रुप्स हमेशा ही कम होंगे, या तो वो बराबर होंगे या फिर कम होंगे। ऐसा कोई चांस नहीं हो सकता कि हम सेकंड ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड ग्रुप फर्स्ट वाले से बड़ा हो। अब हम कोई और एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं। 1 1 0 0 0 1 1, इसमें हमारा जीरोस का एक ग्रुप है और वंस के 2 ग्रुप है, तो हम सेकंड वाले को फ्लिप करेंगे, राइट। अगर हम 1 0 1 0 ले रहे हैं, तो इसमें 0 के 2 ग्रुप हैं और वंस के 2 ग्रुप हैं, तो हम 0 को वापस से फ्लिप करेंगे। दैट मीन्स अगर हम अपने सेकंड ग्रुप को फ्लिप करेंगे हमेशा, तो हमारा आंसर हमेशा सही आएगा, क्योंकि सेकंड ग्रुप का जो फ्लिप करने की मतलब सेकंड ग्रुप को फ्लिप करेंगे, सेकंड नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होंगे ना इनर वाले, वो हमेशा कम होंगे। इसको हम और एग्जाम्पल्स पे भी ट्राई कर सकते हैं। तुम 1-2 एग्जाम्पल्स अपने कॉपी पर लिखो और वहां से हम ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है, हम एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेके n तक, और हम चेक करेंगे कि 1 से चलाएंगे बेसिकली हम एक फॉर लूप, और हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो ARR i-1 है वो हमारा पुराने वाले एलिमेंट से डिफर कर रहा है ना, मतलब जो हमारा पुराने वाला एलिमेंट है वो इससे डिफर कर रहा है, दैट मीन्स वी आर एंटरिंग अ डिफरेंट ग्रुप। तो अब हमें चेक करना है कि हमें इस ग्रुप को चेंज करना है कि नहीं करना है। तो हमने जैसे कि एक रूल बनाया था कि हम अपने पहले ग्रुप को कभी चेंज नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि हम इस वाले ग्रुप को कभी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो हम उसको नहीं चेंज करेंगे। तो हम अपनी यही वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होंगे यहाँ पे कि अगर हमारा जो पुराना वाले एलिमेंट है वो हमारे करंट एलिमेंट से डिफर कर रहा है, तो हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है वो बराबर नहीं है हमारे फर्स्ट एलिमेंट से, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको चेंज की जरूरत है, राइट। क्योंकि हमें अब चेंज की कहाँ जरूरत है, 0 पर, हमें 0 पर तो चेंज चाहिए। और जैसे हम यहाँ पे हमने चेक किया, हम यहाँ से स्टार्ट करें ना, तो यहाँ पे हमने चेक किया पुराने एलिमेंट से सेम है, 0 पर आए, हमने देखा कि 0 तो पुराने एलिमेंट से डिफरेंट है, दैट मीन्स हम एक डिफरेंट ग्रुप में एंटर कर रहे हैं। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम एक डिफरेंट ग्रुप में तो एंटर कर रहे हैं, पर वो तो ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो हमें चेक करना है कि हमें इसको चेंज करना है कि नहीं करना है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना है कि अगर यहाँ ये वाला एलिमेंट हमारे फर्स्ट एलिमेंट से अलग है, दैट मीन्स ये वाला ग्रुप चेंज करना है, और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप चेंज नहीं करना है। ये वाला ट्रिक समझ आया? समझ आया? धन्या, अनिरुद्ध, आंचल, अंजलि, रवि। I'm trying to Yes, ma'am. process it.
ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनमें से ये नंबर ऑफ फ्लिप्स वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, आई डोंट रिमेम्बर कौन से इंटरव्यू में पूछा गया था, बट दैट वाज अ कंपनी ऑफ आई गेस CTC 18, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। और क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ था तो मेरे को आसानी थी, वरना अगर मैं डायरेक्ट इंटरव्यू में फेस करती क्वेश्चन तो मोस्ट लाइकली मुझे नहीं आता वहां तक। तो ये बेसिकली ट्रिक है कि हम देख रहे हैं कि हमारा इनर ग्रुप हमेशा छोटा है, तो हम उसी को ही चेंज करेंगे। अब टू चेक कि भाई ये वाला ग्रुप, अगर जो ये वाला एलिमेंट है उसको हमें चेंज करना है कि नहीं करना है, वी विल कंपेयर इट विद आवर फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना है चेंज। फर्स्ट एलिमेंट तो हमने फिक्स कर दिया कि उसके जैसे ही हमको बाकी पूरा एरे कन्वर्ट करना है।